Hello everyone. In this video, we will continue further the topic methods of capital busting, and here we will understand net present value method. I am Madhu Verma and welcome you all at my YouTube channel Learning Academy of Commerce, where learning and education is imparted in an easy way. If you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for the new video updates. So let's begin with the capital busting methods. There are many methods of evaluating investment proposals, and these methods can be categorized in two categories: traditional methods and time adjusted methods or discounted methods. In the earlier videos of capital busting, we have already discussed the traditional methods, that are the payback period method, improvement of traditional approach to payback period method, and rate of return method or accounting method. So if you are new to the channel and you have not seen the earlier videos of capital busting, I will provide the link in the description box. You can watch these videos by clicking on that link. In this video, we will start with the time adjusted methods or the discounted methods. As we have discussed the traditional methods, so the traditional methods of capital busting like the payback period method as well as the accounting rate of return method, these methods have some limitations. Like these methods do not take into consideration the time value of money. But the modern methods or the time adjusted or discounted methods take into account the time value of money. These methods take into account the profitability as well as the time value of money. That's why these methods are also called the modern methods of capital busting, and these are becoming very popular day by day. And there are different time adjusted methods like net present value method, internal rate of return method, profitability index method, and terminal value method or modified IRR. In this video, we will start with the net present value method. So let's understand what is net present value method. The net present value method is a modern method of evaluating investment proposals. नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एक टाइम एडजस्टेड मेथड है और इस मेथड को मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कहा जाता है. This method takes into consideration the time value of money and attempts to calculate the return on investment by introducing the factor of time element. Because जो टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटिंग मेथड्स है वे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की फीचर है कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है और इस मेथड में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फैक्टर ऑफ टाइम एलिमेंट इंट्रोड्यूस करके कंप्यूट किए जाते हैं. So what are the necessary steps in net present value method to compute the profitability of any project? The following are the necessary steps to be followed for adopting the net present value method of evaluating investment proposals. The first step is first determine an appropriate rate of interest that should be selected as the minimum required rate of return, that is called cutoff rate or discount rate. सबसे पहले एक appropriate rate of interest determine की जाती है. Rate of interest जो कि select की जाती है एज अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कट ऑफ रेट या फिर डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. And that rate should be the minimum rate of return below which the investor considers that it does not pay him to invest. और यह rate of return वह rate है जिससे नीचे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सोचता है कि इससे नीचे अगर वह इससे कम रेट पर इन्वेस्ट करेगा तो उसको कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. सो डिस्काउंट रेट शुड बी आइदर द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स और इट शुड रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टर. After determining the rate of interest or cut-off rate, second step is compute the present value of total investment outlay, that is cash outflow. उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले की प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाती है. टोटल इन्वेस्टमेंट आउटले मींस कैश आउटफ्लो, जो इन्वेस्टमेंट की गई है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाएगी. प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाती है प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट से. एंड इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट is to be made in initial year, the present value of all that value should be the same as the cost of investment. और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल ईयर में ही कर दी गई, मीन्स इनिशियल ईयर के बिगिनिंग में ही कर दी गई, तब उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी सेम होगी जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. उस समय पर प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाएगी, वह सेम होगी. We will understand in the example when we will discuss the numerical of net present value method. Third step here is
compute the net present values of compute the present values of total investment proceeds, that is cash inflows, profit before depreciation and after tax at the predetermined discount rate. उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स मींस कैश इनफ्लोज जो हमें जनरेट हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। अब कैश इनफ्लोज क्या होंगे? कैश इनफ्लोज होंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट किए जाएंगे, और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए पहले डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट्स में से माइनस किया जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो पहले डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, फिर आफ्टर डेप्रिसिएशन प्रॉफिट्स में से टैक्स माइनस किया जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट किए जाएंगे, और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंप्यूट कर देंगे देन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया जाएगा। सो इससे हमारे पास आएंगे प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। और जो कैश इनफ्लोज होंगी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, उसको डिस्काउंट किया जाएगा एक प्रीडिटरमाइंड डिस्काउंट रेट से, जिससे कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। फोर्थ स्टेप है calculate the net present value of each project by subtracting the present value of cash inflows from present value of cash outflows of each project। अब हर एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाएगी? बिकॉज हमने कैश आउटफ्लोज की भी नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की और कैश इनफ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की कंप्यूट करने के लिए कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में से कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। And if the net present value is positive or zero, that is when the present value of cash inflow either exceed or is equal to the present value of cash outflows, the proposal may be accepted। अगर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बट इन केस present value of cash inflow is less than the present value of cash outflow, the proposal should be rejected। लेकिन अगर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से कम है, तब प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज वहां पे इनफ्लोज कम जनरेट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू आउटफ्लो, तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे मींस कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा होगी, तब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ये है कि अगर एक प्रोजेक्ट है उसमें हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है। अब अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं और उसमें से हमें सिलेक्शन करना है, देन टू सिलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट शुड बी रैंक इन ऑर्डर ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द प्रोजेक्ट हैविंग द मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो पहले हम हर एक प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग की जाएगी उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे। जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, हायर उसकी मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू है सबसे ज्यादा है, उसको हायर रैंकिंग दी जाएगी एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करते हैं। So what is the formula for computing net present value? The present value of cash inflows for a number of years is thus found as follows. Net present value 0 means at the beginning is equal to a1 over 1 plus r plus a2 over 1 plus r square plus a3 over 1 plus r cube plus means 1 plus r raised to power 3 plus up to a n minus 1 over 1 plus r n minus 1 plus a n over 1 plus r raised to power n। that depends कि number of years कितने हैं, तब तक यहाँ पर इनको ऐड किया जाएगा। So what is a here? a1, a2, a3 and up to an, these are the future net cash flows, means profit after tax but before depreciation। तो cash inflows generate हो रही है, that is called a1, a2, a3 and up to an। r is rate of interest annually, 1 2 3 up to n number of years, जितने number of years के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है। df is the discounting factor that at interest rate r and for period n। pvif rn is equal to present value of interest factor at interest r and at period n। This is how we will compute the present value of cash inflows।
So let's understand it with the help of an example. First of all, this formula is present value of interest factor. Rn is equal to discount factor. Rn is equal to 1 over r raised to power n. So we will understand this, how we'll compute present value of cash inflows, present value of cash outflows, and how we'll compute the net present value. So let's take an example. From the following information, calculate the net present value of the two projects and suggest which of the two projects should be accepted, assuming a discount rate of 10%. हमें टू प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें डिसीजन लेना है किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए। के लिए हमें दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करना है। डिस्काउंट रेट गिवन है 10%, आर डिस्काउंट रेट 10% गिवन है। सो प्रोजेक्ट एक्स की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000, प्रोजेक्ट वाई की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30,000। एस्टिमेटेड लाइफ फॉर प्रोजेक्ट एक्स इज 5 years, for project Y it is again 5 years. Scrap value given है दोनों प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट X की स्क्रैप वैल्यू 1000, प्रोजेक्ट Y की है 2000. And the profits before depreciation and after taxes means the cash inflows are as follows. दोनों प्रोजेक्ट्स की कैश इनफ्लोज गिवन है, कितनी है प्रोजेक्ट X की ईयर 1 में 5000, ईयर 2 में 10,000, ईयर 3 में 10,000, ईयर 4 में 3,000 एंड ईयर 5 2,000. For project Y in year 1 20,000, in year 2 10,000, in year 3 5,000, year 4 3,000 and year 5 2,000. So here in this example it is given that R is equal to 10% and N is equal to 5 years. हमें यहाँ पर क्या given है, R given है 10% और estimated life because 5 years है तो N क्या हुआ 5 years. So how we'll compute the net present value of both the projects? Let's understand. हमें cash inflows 5 years given है दोनों projects की और इसके साथ 5th year में scrap value भी given है क्वेश्चन में, राइट। तो यहाँ पर हमें कैसे कंप्यूट करना, देखिए 5 years के कैश फ्लोज गिवन है, स्क्रैप वैल्यू प्रोजेक्ट एक्स की गिवन है 1000, प्रोजेक्ट वाई की 2000। सो सबसे पहले ईयर 1 हम डिफरेंट कॉलम्स लिखेंगे। ये फर्स्ट कॉलम होगा ईयर का जिसमें कि नंबर ऑफ ईयर जो भी स्पेसिफाई किए गए क्वेश्चन में, कैश फ्लोज कैश इनफ्लोज है, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट फैक्टर गिवन है 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कॉरस्पॉन्डिंग ईयर के अकॉर्डिंग हम टेबल से प्रेजेंट वैल्यू टेबल से इसकी प्रेजेंट वैल्यू का देख लेंगे क्या वैल्यू होगी। अंगेज द ईयर 1 फॉर 10% इट इज 0.909। इसी तरह से फॉर ईयर 2 0.826, फॉर ईयर 3 0.751 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने डिफरेंट ईयर्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज देख ली प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से। और फिर उसके बाद कैश इनफ्लोज जैसे कि 5000 है फर्स्ट ईयर में और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर से 0.909 से। तो हमारे पास क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से तो वैल्यू आई 8260 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने 5 इयर्स की वैल्यूज कंप्यूट कर ली। 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू गिवन है 1000 प्रोजेक्ट की एक्स की, बिकॉज देखिए जो कैश इनफ्लोज है ये हमारी अर्निंग्स है, ये इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स है, हमें डिफरेंट ईयर्स में मिल रही है। अब 5th ईयर में जब हमारी स्क्रैप वैल्यू वह भी हमारी अर्निंग है बिकॉज जो हमारी स्क्रैप वैल्यू एंड में बच जाती है उसको हम सेल आउट करके भी मनी रियलाइज कर रहे हैं। तो 1000 स्क्रैप वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट की जाएगी 0.621 है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 5th ईयर में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 621। तो यहाँ पर इन सभी कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल किया जाएगा दैट इज 24,227। So this is the total of all cash inflows. अब इसमें से माइनस करना है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 है और जो कि फर्स्ट ईयर में ही गिवन है उसके बाद नहीं है। सो फर्स्ट ईयर में है तो हम इसकी एक्चुअल कॉस्ट ही लिखेंगे यहाँ पर दैट विल बी ₹20,000। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 4,227। ये है प्रोजेक्ट एक्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब हमें दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट वाई की नेट प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है। इसी तरह से डिफरेंट ईयर्स के कैश इनफ्लोज है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से टेबल से हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की, और यहाँ पर कैश फ्लो लाइक फर्स्ट ईयर में 20,000 है, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.909 से, तो वैल्यू आई 18,180 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने हर एक ईयर की वैल्यू कंप्यूट कर ली। प्रोजेक्ट वाई में भी फिफ्थ ईयर में स्क्रैप वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज गिवन 2000। फिफ्थ ईयर में है तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर होगा 0.621, इसको इससे 2000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 1242। तो टोटल आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का 34,728। उसमें से माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 30,000 ईयर की बिगिनिंग में ही गिवन है, तो 30,000 माइनस कर देंगे, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई 4,728। दोनों केसेस में नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, बट हमें यहाँ पर रैंकिंग करनी है, टू प्रोजेक्ट्स में से कंपेयर करना है किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जाए किसको रिजेक्ट किया जाए। सो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू हायर है प्रोजेक्ट वाई की, तो it is suggested that project Y should be selected because that is having higher net present value as compared to the project X. Now we will discuss what are the advantages of net present value method. Net present value method's first advantage is it recognizes the time value of money. This is the biggest advantage of net present value method because it considers the time value of money and it is suitable to be applied in a situation with uniform cash outflows and uneven cash inflows at different periods of time. और यह मेथड ऐसे सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, सुटेबल रहता है जहाँ पे हमारे कैश इन आउटफ्लोज यूनिफॉर्म है और कैश इनफ्लोज अनइवन है, मींस कैश इनफ्लोज अनइक्वल है डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में, और यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जाता है। सेकेंड एडवांटेज net present value method की है, it considers the earnings over the entire life of the project and the true profitability of the investment proposal can be evaluated. यह मेथड जो भी अर्निंग्स एक प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ टाइम पीरियड में अर्न की जाती हैं उनको कंसीडर करता है। जैसे कि हमने पे बैक मेथड में किया था, उसमें हम वह अर्निंग्स कंसीडर करते हैं जो कि पे बैक पीरियड तक हम अर्न करते हैं, उसके बाद की अर्निंग्स को कंसीडर नहीं किया जाता। जबकि इस मेथड में होल लाइफ के लिए जो प्रोजेक्ट अर्निंग्स अर्न करता है उन सबको कंसीडर किया जाता है। एंड थर्ड, इट कंसीडर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। यह मेथड मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करता है, बिकॉज एक तो इसका रीजन है यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया जा रहा है, एंटायर लाइफ टाइम में अर्निंग्स को कंसीडर किया जाता है, तो जो भी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रखकर यह मेथड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेल्युएट करता है। Although there are some advantages of net present value, but there are some disadvantages also in net present value. What are the disadvantages and drawbacks here? The first one is, as compared to the traditional methods, the net present value method is more difficult to understand and operate. जैसे कि हमने ट्रेडिशनल मेथड्स डिस्कस किए जिसमें कि कैलकुलेशंस इजी हैं एज कंपेयर टू नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसको समझना और उसकी कैलकुलेशंस को करना एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड्स डिफिकल्ट है। Second is, it may not give good results while comparing projects with unequal lives, as the project having high net present value but realized in a longer lifespan may not be as desirable as a project having something lesser net present value achieved in a much shorter span of life of the asset. यह मेथड वहां पर अच्छे रिजल्ट नहीं देता जब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं जिनकी लाइफ्स अनइक्वल है। एक होता है हमारे पास ऐसे सिचुएशन है कि टू प्रोजेक्ट्स गिवन है, दोनों की लाइफ सेम है, तब हमें उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर टू प्रोजेक्ट्स गिवन है, दोनों की अनइक्वल लाइफ्स है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी लॉन्गर लाइफ है, दूसरे की कंपैरेटिवली कम लाइफ, शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ है, तो उस
सिचुएशन में दोनों प्रोजेक्ट्स को नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करना सुटेबल नहीं है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट है जिसकी लॉन्गर लाइफ है और उसकी हायर नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वह डिजायरेबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू द प्रोजेक्ट जिसकी लेस नेट प्रेजेंट वैल्यू है और वह हमने शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ में अचीव की है. Another disadvantage of this method is, in the same way as we have discussed above, it may not give good results while comparing projects with unequal investment of funds. यह मेथड जब हम अनइक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वहां पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता. And the last disadvantage of this method is it is not easy to determine an appropriate discount rate, because इस मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने के लिए कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एक डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया जाता है जिसके बेसिस पे हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करते हैं. लेकिन उस प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना कि किस रेट से डिस्काउंट किया जाएगा के बेसिस पे हम प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करेंगे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, उसको डिटरमाइन करना इजी टास्क नहीं है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो कई बार अगर डिस्काउंट रेट सही डिटरमाइन नहीं हुई है तो प्रेजेंट वैल्यू सही कंप्यूट नहीं होंगी. So these are some of the disadvantages of net present value method. So this is how we compute the profitability of any investment project using net present value method. I hope you must have understood this method very well. In the next video, we will discuss the another time adjusted method, that is internal rate of return method. So thanks for watching the video. Please subscribe my YouTube channel, like the video and share it with your friends. And please give your comments in the comment box about how did you like the video.